హాయ్ గాయ్స్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? ఇదైతే నాది 4th సెషన్. ఈరోజు నేను ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు యూపీఎస్సీలో చదివేటప్పుడు, ప్రిపరేషన్ టైంలో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా టాపిక్ చదువుతూ ఉంటే అది మీకు ఆ టాపిక్లో ఇంట్రెస్ట్ కలగాలన్నా, ఆ టాపిక్ మీకు ఎక్కువ రోజులు గుర్తుండాలన్నా మీరు చేయాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఈ టాపిక్ రేపు నేను ఐఏఎస్ అయితే ఎలా యూజ్ అవుతుంది నాకు. నేను ఈ టాపిక్ ఇప్పుడు చదువుతున్నాను, ఈ టాపిక్ నేను ఐఏఎస్ అయితే నాకు ఎలా యూజ్ అవుతుంది, నేను అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఈ టాపిక్ నుంచి నేను ఏం చేయగలను, అంటే నాకు ఎలా హెల్ప్ అవుద్ది, ఏ సిచ్యువేషన్లో ఎక్కడ హెల్ప్ అవుద్ది, ఇలా కానీ మీరు చదివారంటే అంటే ఇది నేర్చుకోవడం. ఇదంతా ఒక ట్రైనింగే. మీరు ప్రిపరేషన్ అంతా చేసేది మనకు లబాసనాలో ట్రైనింగ్ అని అంటాం, కానీ లబాసనాలో ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది అంతే. ఇదంతా ట్రైనింగ్ పీరియడే. ఇక్కడే ఎక్కువ మంది నేర్చుకుంటారు. ఎవరైతే తొందరగా నేర్చేసుకుంటారో వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయిపోతారు. ఒకవేళ మనం సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదంటే దాని రీజన్ మన ట్రైనింగ్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు, మనం ఇంకా ఫిట్ అవ్వలేదు ఇంకా ఐఏఎస్ కోసం. అలాగా ఆ విషయాన్ని మీరు మైండ్లో పెట్టుకొని నేర్చుకున్నారంటే, నేను చదివే ప్రతి కాన్సెప్ట్ నాకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ రేపు నేను ఐఏఎస్ అయితే ఎలా యూజ్ అవుతుంది అని చదివితే మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ ఎక్కువ కాలం గుర్తుంటుంది, చాలా ఈజీగా గుర్తుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మనం ఆర్ట్ అండ్ కల్చరే చదువుతున్నాం. ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్లో ఫెస్టివల్స్ చదువుతున్నాం. ఓనం అని ఉంటుంది, బిహు ఉంటుంది, మకర సంక్రాంతి ఉంటుంది, పొంగల్ అని ఉంటుంది, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. హార్న్ బిల్ ఫెస్టివల్ ఉంది, అది నాగాలాండ్లో జరుపుతారు. ఇలాగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఫెస్ట్లు ఉన్నాయి. ఈ ఫెస్ట్ అన్ని నేను చదవడం అవసరం ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ చదవడం. ఎందుకంటే ఫర్ సపోజ్ మనం ఐఏఎస్ అయిన తర్వాత మనకు నాగాలాండ్ క్యాడర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ క్యాడర్లో వెళ్ళినప్పుడు మనల్ని పిలుస్తారు. అక్కడ ఏదైనా సెరమనీస్ జరిగినప్పుడు, ఇప్పుడు హార్న్బిల్ ఫెస్టివల్ ఉంది, నాగాలాండ్ స్టేటే జరుపుతుంది. అది జరుపుతున్నప్పుడు మనల్ని అక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి, మెజిస్ట్రేట్ కాబట్టి పిలుస్తారు. మనల్ని ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు మనకు దాని గురించి ఏం తెలియలేదు అనుకోండి, అక్కడ మనం ఏదో ఒక అన్నాలెడ్జ్ పర్సన్ లా ఉంటాం, ఇల్లిటరేట్ గా కనిపిస్తాం. ఒకవేళ మనం దాని గురించి నాలెడ్జ్ ఉందనుకోండి, అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, ఆ టైంలో ఆ పీపుల్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అనేది మనకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో చాలా హెల్ప్ అవుద్ది. ఆ టైంలో మనం హాలిడేస్ ఇవ్వాలా స్కూల్స్, అక్కడ ఆఫీసెస్ కి, ఆ టైంలో మొత్తం నేను ఎలా సిస్టమ్ చేయాలి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా చేయాలి అనేది ఆ ఫెస్ట్ గురించి మీకు తెలిస్తే దాని ప్రాపర్ ప్లానింగ్ అనేది మీరు చేయగలరు. అందుకని ప్రతి కాన్సెప్ట్ మనం నేర్చుకునేటప్పుడు ఇది నాకు రేపు నేను ఐఏఎస్ అయితే ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనే ఒక చిన్న మైండ్ థాట్తో నేర్చుకున్నారంటే మీకు ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా ఇలాగే అర్థమైపోద్ది. ఇంకోటి, ఎక్కువ టైం గుర్తుండడానికి ప్రాక్టీస్ అవుద్ది. ఇది మీరు నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడైతే నేను 4th సెషన్ చేస్తున్నాను. ఇందాక జనరల్లీ నేను ప్రతి సెషన్ 2 అవర్స్, అంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్ నాకు 2 అవర్స్ కదా. 1 అవర్ అయితే నాది సీసెట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇంకో 1 అవర్ ఉంది. ఆ 1 అవర్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తున్నాను నేను.
what is the ratio of A is to B is to C if 3A is equal to 4B is equal to 5C? A B C का अनुपात ज्ञात कीजिए। A B C का अनुपात ज्ञात कीजिए if 3A is equal to 4B is equal to 5C. बीस 15 12। तो इसका तरीका सीख लीजिए कि ऐसे जगह पर हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी सी किस अनुपात में होंगे कि ए का 3 गुना बी के 4 गुना के बराबर और सी के। अब देखो इसको कई कहानियों में बदला जा सकता है। एक पिता के पास जमीन का एक निश्चित भूभाग है, वो अपने 3 बेटे एबीसी में इस तरीके से जमीन बांटना चाहता है, ए को मिलने वाली जमीन का 3 गुना बी को मिलने वाली जमीन के 4 गुना के बराबर और सी को मिलने वाली जमीन के 5 गुना के। तो बताइए किस रेशो में जमीन बांटी जाए। तो अगर ऐसी चीज होती है तो आपको याद आना चाहिए कि ये टाइप 2 का सवाल है। ऐसी जगह पर बहुत सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब केवल इतना सा है कि ए का 1/3 बी के 1/4 के अनुपात में और सी के 1/5 के अनुपात में होना चाहिए था। बस इतना ही इसका मतलब है, क्योंकि उसका 1/3 इसके 1/4 और इसके 1/5 के रेशो में है, तभी वो बराबरी में आ पाएंगे। नीचे का एलसीएम निकाल लीजिए, क्या आएगा। और जब भी आपको नीचे खत्म करना हो तो जो अभी कल से पढ़ाया 20 15 12 आप कहेंगे 20 15 और 12 के अनुपात में। बहुत सिंपल लॉजिक है, बस आपको उसको क्या करना है, उसका रेसिप्रोकल में बदलकर अनुपात लिख देना है। मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, बस बराबरी को रेसिप्रोकल लिखकर अनुपात में बदल देना। अगर आपको सच में हमारी बात समझ में आ गई तो बताइए 4A is equal to 5B is equal to 6C। 4A is equal to 5B is equal to 6C। क्या आ रहा है? पंद्रह अनुपात 12 9। नहीं, ये 6 लिखा है मैंने। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा, 1/4 डायरेक्ट रेशियो में बदल दिया। एलसीएम फिर हो जाएंगे अब इस टाइप के सवाल। कहानियां देखो मैं डायरेक्ट दे रहा हूं, एग्जामिनर उसमें कहानियां बना सकता है। आया नहीं अभी तक, लेकिन मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि ऐसी चीजें पूछी जा सकती है। ये भी पीसीएस वालों ने पूछे अभी तक। लिखना टाइप 3 जो यूपीएससी पूछती है। लिख 20 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर 20 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में
20 liter mixture of milk and water contain milk and water in the ratio 5:3. दूध और पानी के मिश्रण में 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। If 4 liter mixture replaced by the 4 liter milk, यदि 4 लीटर मिश्रण को निकालकर 4 लीटर दूध डाला जाए, if 4 liter mixture replaced by the 4 liter milk, 4 लीटर मिश्रण को निकालकर 4 लीटर दूध डाला जाए, then what is the ratio of milk and water in new mixture? तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये पहला टाइप जहां यूपीएससी का सवाल बनता है। ये सवाल ऐसा है ना जैसे अंदर से आवाज आएगी बस अभी होने वाला है, और ये खराब सवाल है क्योंकि ये टाइम लेकर जाता है और ये इको पर भी आ जाता है कई बार कि इतना इतना सिंपल सवाल। करें देखो इस सवाल में पहली स्टेप ही गलत हो जाती है। क्या अनुपात दिया था, आ जाते 5:3। इसका मतलब दूध कितना है, वहां दूध 5/8। यही है ना। आप में से अधिकतर लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5/8 into 20 कर रहे हैं और यही सबसे पहली गलती है। आप 20 लीटर में दूध निकाल कर क्या कर लोगे, उसमें से 4 लीटर तो निकलने वाला है ना। 4 लीटर मिक्सचर निकालने से रेशियो बदलने वाला है क्या? कोई नहीं बदला, वो तो 16 लीटर में उतना ही रहेगा ना। तो रियलिटी में दूध की मात्रा 20 में नहीं 16 लीटर में निकालिए, पानी की मात्रा 20 में नहीं 16 लीटर में निकालिए और आपको पता चल जाएगा यहां 10 लीटर मिल्क है और 6 लीटर पानी है। अब बताओ क्या जोड़ना है, मिला दीजिए। फिर दूध अब कितना हो जाएगा, अगर दूध 4 लीटर आ गया तो मतलब अनुपात क्या आ जाएगा। बस इतना ही बड़ा सवाल होना चाहिए। मतलब आपको कहां गलती सुधारनी है अपनी। फर्स्ट रिमूव द सॉल्यूशन एंड देन फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर। पहले विलेन को हटा दीजिए और फिर मात्राएं ज्ञात कीजिए। आपने क्या किया, पहले मात्राएं ज्ञात कर ली और फिर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ट्राई करिए, सवाल खत्म और जवाब आने चाहिए। दूसरा सवाल, 40 लीटर ऑफ मिक्सचर 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर
contain milk and water in the ratio 5:2. 40 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। If 5 liter mixture replaced by the 5 liter water, यदि 5 लीटर मिश्रण को निकालकर 5 लीटर पानी डाला जाए, यदि 5 लीटर मिश्रण को निकालकर 5 लीटर पानी डाला जाए, what is the ratio of milk and water in new mixture? तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5:3। तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब तो उत्तर आ जाने चाहिए सभी के। बताइए, सबसे पहले आपने निकाला दूध 5/7 किसमें? 2/7 किसमें? तो आप कहेंगे कि 25 लीटर का दूध और 10 लीटर का पानी। अब क्या करने जा रहे हैं? 5 लीटर पानी मिला, यही किया ना? तो 10 की जगह 15 लीटर हो गया। अनुपात क्या आ जाएगा? 25:15। अब दूध 25:15 मतलब 5:3 हो जाए, हो जाएगा या और करवाए इसमें? अगला टाइम स्टार लगाएंगे। इस बार सवाल इसी में से आना चाहिए। बस हो गया तो लिखना। A bag contain 1 rupees 50 paise and 25 paise coins in the ratio 5:6:7। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों A bag contain 1 rupees 50 paise and 25 paise coins in the ratio 5:6:7। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के हैं। A bag contain 1 rupees 50 paise and 25 paise coin in the ratio 5:6:7। 3 तरीके के सिक्के हैं। If the total amount is rupees 390, यदि थैले में कुल 390 रुपए हो, if the total amount is rupees 390, यदि थैले में कुल 390 रुपए हो, find the number of coins of 50 पैसे। तब 50 पैसों के सिक्के कितने होंगे? अनुपात 5:6:7 के अनुपात में है। 5:6:7 के अनुपात में 1 रुपए 50 लिखा है ना उसमें प्रश्न में। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसों के सिक्के 5:6:7 लिखा ना ऐसा। और यदि थैले में कुल 390 रुपए हो तो 50 पैसों के कितने सिक्के होंगे?
लाल कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? अरे कितना अकेले हंसना अच्छा नहीं है, लोग डाउट करते हैं। इस हाँ मैं नहीं, ये आया नहीं इस बार, अभी टेस्ट में आया होगा। नहीं सिक्को वाला नहीं आया इस बार, 2019 में आया सिक्को वाला सवाल। 11, 19 और अभी आया नहीं, तो मुझे उम्मीद है इस बार आना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन ले लीजिए, उसमें क्या ऐसा क्या लग रहा है आपको कि केवल 50 पैसों के सिक्के हैं? 240, 330, 420, 510, 240, 330, 420, 510। आइए देख लेते हैं। ऑप्शन में 40 सही नहीं। पांच मतलब 50 पैसों के कितने सिक्के ये पूछा है बस। 240। आइए देख लेते हैं क्या लॉजिक याद रखना है इसमें, बस इस पर गौर करिए। आपको टोटल सिक्के पता है कि टोटल रुपए पता है, बस इसी पर पूरे सवाल की थीम है, टोटल रुपए। और रेशो रुपए का दिया क्या इस बदमाश ने? सिक्कों का दिया। मतलब तुम्हें उस रेशो को केवल किस में बदलना है? रुपए में। उस नंबर को रुपए में। 1 रुपीज 50 पैसा और 25 पैसे के कॉइन का रेशो 5:6:7 है। मुझे बताइए कि एक रुपए के माना टोटल सिक्के जो भी होंगे यहां पर, एक रुपए के 5x सिक्के हैं। कोई ना कोई एक नंबर मल्टीप्लाई में आएगा और ओरिजिनल हो जाएंगे, क्योंकि सिंपल रेशियो तभी आया होगा ना जब एक किसी कॉमन नंबर ने सभी को डिवाइड किया होगा। हम मान रहे हैं कि वो डिवाइड करने वाला कौन रहा होगा? x। मुझे बस इतना बताइए कि एक रुपए के 5x सिक्कों से कितने रुपए बने होंगे? 5x, यही हुआ होगा ना। लेकिन 50 पैसों के टोटल सिक्के कितने हुए होंगे यहां पर? 6x। पर क्या उससे रुपए कितने बने होंगे? आधे, क्योंकि 2 सिक्कों से 1 रुपया बनेगा, मतलब रुपए 3x हो गए। और 25 पैसों के जितने सिक्के उससे रुपए कितने बनेंगे? 1/4, क्योंकि 4 सिक्कों से 1 मतलब आप कहेंगे कि सर 7x बाय, और कुल रुपए कितने के बराबर बता रहा है वो? फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, पूरे प्रश्न की थीम केवल इस बात पर बेस्ड है कि टोटल क्या दिया है। टोटल रुपए दिया है तो आप पूरे रेशो को रुपए में बदल दो ना। जो 6 कह रहा है उसको 3 लिख दो, क्योंकि वो आधा रुपया बनेगा। जो 7 लिख रहा है उसको 7/4 लिख दो, क्योंकि उससे 1/4 रुपया बनेगा। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा एलसीएम नीचे का 4, यहाँ 4 नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20, 12, 7, यहाँ 40 क्या है? उत्तर नहीं है, x की वैल्यू है। और x क्या था? इनका कॉमन मल्टीप्लाई, जिसको सिंप्लीफाई करने में यूज हुआ होगा। 50 पैसों के सिक्के होंगे 240, सिक्के 240 होंगे, रुपए पूछा जाता तो 120 रुपए हो जाते। अब आप इसका भी बता सकते हैं 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे। आप ये भी बता सकते हैं कि 25 पैसों के सिक्के कितने होंगे। तरीका यही रहेगा, लॉजिक बस याद क्या रखना है, टोटल क्या दिया है वो इंपॉर्टेंट है।
अंतर को बाय ऑप्शन केवल तभी हल कर सकोगे जब तीनों सिक्के ऑप्शन में दिए जाए। इसको आप तभी यूज कर सकोगे जब तीनों ऑप्शन में सिक्के। यहां बदमाश ने क्या किया, एक का ही पूछा। अगर वो पूछ लेता 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए, फिर तो बाय ऑप्शन कर लेना। और एक ही सिक्का पूछेगा तो ऑप्शन कोई मदद नहीं कर पाए। हो जाएगा, ट्राई करिए आप। A bag contain 114 rupees। एक थैले में 114 रुपए हैं। A bag contain 114 rupees। एक थैले में 114 रुपए हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसों के सिक्कों के रूप में। A bag contain 114 rupees in the form of 1 rupees, 50 पैसे and 10 पैसे coin and 10 पैसे coin। एक लाल कह रहा है 50 पैसे के सिक्के, तो ये 6x 50 पैसों के सिक्कों का नंबर था। x की वैल्यू निकाल दी, वो रख दी बस हम। एक थैले में 114 रुपए है, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसों के सिक्कों के रूप में। यदि उनका अनुपात 3:4:10 3 4 10 हो, 1 rupees 50 पैसा and 10 पैसा coin in the ratio 3:4:10, what is the number of 50 पैसा coin? तब 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब x की वैल्यू 19 आई होगी। रेशो 3:4:10। तो क्या आपने उसे लिखा सबसे पहले 3x 4x 10x। ये क्या लिख रहे हैं हम लोग कि भाई कोई ना कोई मल्टीप्लाई होगा ना वो। अरे ये तो सिंपल फॉर्म है ना रेशो। ओरिजिनल नंबर में कोई कॉमन मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई x होगा। बताइए 1-1 रुपए के 3x सिक्कों से कितना बनेगा? 50 पैसों के 4x से और 10-10 पैसों के 10x से, क्योंकि 10 सिक्कों से 1 ही रुपया बनेगा। कुल कितने रुपए हैं? 6x। x की वैल्यू आ गई 19। और अगर x की वैल्यू पता चल गई तो निकाल दीजिए। 50 पैसे के भी बता सकते हैं, 10 पैसे के भी बता सकते हैं और
₹1 के भी बता सकते हैं। अरे बात समझ में आई? चेहरे भयानक है। हाँ। एक ट्राई फिर करके देख लीजिए सेम पैटर्न पर। A bag contain 50 paisa, 1 rupees and 2 rupees coin. A bag contain 50 paise, 1 rupees and 2 rupees coin in the ratio 2:3:4. एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं। 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं 2:3:4 के अनुपात में, इन द रेशियो 2:3:4, 2:3:4 के अनुपात में। If the total amount is ₹240, यदि थैले में कुल 240 रुपए हो, if the total amount is ₹240, यदि थैले में कुल 240 रुपए हो, what is the total number of coin? तब थैले में कुल कितने सिक्के हैं? Points. पैसे कितने थे? तो 2 रुपए के 120 सिक्कों में ही 240 रुपए बनते। टोटल सिक्के अब तो इजी सवाल 180 पॉइंट्स आ रहे हैं। अरे ऐसा कैसे कर रहे, डबल कर दे रहे हैं। मुझे बताइए क्या अनुपात था? क्या अनुपात था? इसे लिख सकता हूं मैं 2x, 3x, 4x। ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। इन्हें हम रुपए में बदल रहे क्योंकि टोटल रुपए पता है हमें। 50 पैसों के 2x से कितने रुपए बनेंगे? 1 रुपए के 3x से और 2 रुपए के 4x से। तो ये हो जाएगा 12। x की वैल्यू आ जाएगी 20। और टोटल सिक्के पूछ रहा है तो 2 और 3 5 और 4 9x, 9 गुना 20, मात्र 180 टोटल सिक्के हैं वहां पर, क्योंकि उसने टोटल पूछे थे इस बार। सेपरेट सेपरेट निकालने से ज्यादा बेटर है तीनों जोड़कर निकाल। तो कल आपकी क्लास का टाइम सुबह 8:30 बजे है, सैटरडे में भी। अगर नहीं हुआ तो मंडे तैयार रहिए। कल प्रयास है कि कंप्लीट हो जाए, नहीं हुआ नहीं, अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसी ऐसी चीजें नहीं करती। 2.5 घंटे हैं, 8:30 से 11 बजे तक। आप तैयार रहिए ना, अभी कल तो आने दीजिए, कल होने दीजिए चीजों को। दिवाली तक हाँ, पर बढ़ाएंगे क्यों? बच्चे क्या हैं?
हाँ तो डाउट आपने पूछने चाहिए ना, आप तो क्लास हुआ कि भागते हैं। वो देखो लाल पूरा बैग तैयार करके बैठा है। आपके व्यक्तिगत डाउट के लिए आप कक्षाएं थोड़ी बढ़वा सकते हैं। इतना भी डेमोक्रेटाइजेशन एजुकेशन का नहीं हुआ है अभी। आपके डाउट है, कल आप डाउट रखिए। डाउट तो उल्टा ऑनलाइन वालों में पूछने चाहिए जिन्होंने सॉल्व भी किए हैं क्वेश्चंस। आप डाउट के लिए आते रहिएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके मतलब रिश्ते खत्म हो गए हैं, क्योंकि सिलेक्शन के बाद वैसे नाम तो भूल जाओगे फिर भी। अरे मैं अब 13 साल का अनुभव व्यक्ति हूँ, क्योंकि सिलेक्शन के बाद कॉल आ जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह से कॉल आ जाते हैं, तो फिर सारी चीजें हो जाती। सिवाय लालियों के अलावा लाल तो भूल गए हैं, मैंने ये चेक किया है। नहीं, ये बात ध्यान रखना, मैं चेहरा जरूर याद रखता हूं। आप मुझे कभी भी मिलिए, चेहरा कभी नहीं। मैं 2010 का विद्यार्थी आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि बेटा तुम 2010 में उस कक्षा में पढ़ा है। मैं इतना मेमोरी कमजोर होती तो फिर इतने विषय कैसे हो सकते। तो कल देखेंगे इसके आगे की बातचीत। मैं भी रीशेड्यूल कर दूंगा क्लास। बाकी जिन भी विद्यार्थियों के डाउट है आप आते रहेंगे। 1 दिसंबर से अभी एक और नया बैच आएगा, समझ लीजिए। मान लीजिए कि मेरा बैच का टाइमिंग है 5 से 7, तो आपको पता है कि मैं क्लास के बाद रुकता हूँ। आपने देखा रेयरली एक आध बार मैं गया होगा जल्दी, मैं रुकता हूँ। तो अगर आप बाद में आ भी जाते हैं, मान लीजिए कि किसी दिन डाउट आ गया आपके, तो आप बस पूछ लेंगे कि सर के क्लास का टाइमिंग क्या है। मान लीजिए मैंने कहा 7 बजे तक, तो फिर आप 7 बजे आ जाना। हाँ मतलब तो उसमें भी आएंगे ना। 1 दिसंबर से शुरू होगा बैच। तो हाँ दिवाली के बाद मतलब आसपास ही, मेरे को अभी एग्जैक्ट डेट नहीं पता ना। फिर 20 अक्टूबर, मतलब मेरे पास डेट नहीं है, तो हो सकता है अगर 20 अक्टूबर से होता है तो आप 20 अक्टूबर के बाद जब भी डाउट आएगा, नहीं 20 अक्टूबर नहीं, 20 नवंबर। नहीं वो तो आप फिर उनसे एक बार कहिए भाई 20 अक्टूबर कौन सा बैच आ रहा है। अरे 20, आज तो 28 चल रहा है ना। वो रोटेशन, वो ऐसा बताया होगा, मैं बता देता हूँ। उनसे एक बार बात कर लीजिएगा। रोटेशन में होता है, जैसे जहां आपसे आपने ज्वाइन किया, आप उस बैच में वहां से शुरू कर सकते हैं। नया बैच आएगा ना, मतलब अभी क्लास पूरी बंद हो जाएगी ना। अरे जो क्लासेस खत्म हो गई, सिंपल इंटरेस्ट, मैं जानता हूं अगर आपकी इच्छा है तो मैं करवा दूंगा। जो करवाया वो तो कर नहीं रहे हो, गंदे लाल हो, हवाबाजी कर रहे हो। सर वो नहीं कराया, सर वो नहीं कराया। अरे मेरे गंदे लाल, जो कराया वो तो कर ले। हाँ बैच किसका था हमारा ये, आप गलत दिशा में जा रहे। पीसीएस में तो कम्युनिकेशन स्किल भी आता है, और वो थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं। आप वो कहिए, मुझसे रिक्वेस्ट करिए कि सर वो करा दीजिए, तो मैं कहूंगा कि ठीक है भाई मैं प्रयास करूंगा। पर आप भूल रहे हैं हमारा बैच यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का बैच। वो भाई मैं कोशिश करता हूँ कि पीसीएस भी कवर हो जाए, क्यों बार बार बच्चा जाए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे देखो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन मैं गारंटी भी दे दे रहा हूं नहीं करोगे आप। किसका? कल